हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा स्टार्ट किया था अपना चैप्टर यूनिट नंबर 4, दैट इज द वेस्ट हीट रिकवरी। इन दैट वी स्टडीड अबाउट द फर्स्ट अपॉन इंट्रोडक्शन। ठीक है, मीन्स व्हाट इज मीन बाय वेस्ट हीट रिकवरी एंड व्हाट इज द नीड फॉर टुडेस इन पावर प्लांट्स। सो नेक्स्ट we studied about the classification of waste heat. So basically, waste heat is classified into two types. First is the high grade heat system, and second is a low grade heat system. Okay, so in that first high grade system, if the temperature is above 300 degrees Celsius, then it is called as a high grade heat waste system. And if the temperature is below 300 degrees Celsius, so that is called as a low grade heat system. Okay. So in that first, that is the sources basically depend upon the that is the hot flue gases. Okay, and second is low grade, that is sources depend upon the steam and hot water. Okay. Next, we study about the benefits of waste heat recovery. So there are some direct benefits and there are some indirect benefits also. So in the direct benefits, we see that is benefit that depend upon the production cost and process cost, and thus there are some indirect benefit, that is the pollutions. Okay, reduction in pollution. Next, reduction in equipment sizes, means then not need to some other auxiliaries or equipments. If we attach the wastage recovery system, so can we emit the some auxiliaries, unwanted auxiliaries. Okay. Next, to reduce operating cost. Next, huge saving and a high profit. Next, increase demand and challenges with higher prices, etc. Next, we studied about the what are the various equipments that we use for the waste heat recovery system. So in that, there are first equipment is recuperators. Okay, we already studied in previous lecture recuperators. Next, regenerators. Next, heat pipe exchanger, thermal wheel, or an economizer. Okay, we also learn the working about the recuperators, that is basically work on the principle of heat exchanger. That is, there are the two types of heat exchanger we use here, that is the first is the parallel flow and another is a counter flow. Okay, and thermal wheel we also studied. Today we discuss about the waste heat recovery boilers. So there are some boilers have that is we use as a waste heat recovery. Okay, so in that boiler there are the principle and diagrams here. So the working is waste heat recovery boilers are those boilers which either use waste heat in the gases coming out of a diesel engine or gas turbine at high temperature, or uses the waste fuel in the incinerators. Incinerator is an apparatus for burning waste fuel at high temperature. Okay. सो क्या होता है बेसिकली कि जब हम गैस टरबाइन या डीजल टरबाइन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उसमें से जो वेस्ट गैसेस निकलती है, तो उसका अमाउंट कैसे रहता है, ज़्यादा रहता है, और बहुत ही ज़्यादा कैसे रहते हैं, हॉट रहते हैं। ठीक है, सो वेस्ट हीट रिकवरी में हम क्या कर सकते हैं कि उन गैसेस को हम फिर से बंद करके हम एज इनपुट मीडियम के द्वारा हम उसको फिर से भेज सकते हैं कंबशन चेम्बर में। ठीक है, सो ये सारे प्रोसेस करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स कनेक्ट करके वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर का कम्प्लीटली सेट तैयार करते हैं। ठीक है, देयर आर द वन असेंबली हियर in that generators, next superheater, evaporator, economizer, stack, all processing equipment are connected here, and that is the one completely setup. Okay, so अगर हमें किसी डीजल इंजन का जो रहेगा उसमें से जो वेस्ट निकलेगा उसको अगर हम फिर से रीयूज में लाना होगा, तो हमें इस पूरे असेंबली को वहाँ पे कनेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, हम इससे उसमें के जो वेस्ट है उसको हम फिर से एज ए इनपुट के द्वारा हम उसको यूज में ला सकते हैं। ठीक है, सो इसका बेनिफिट क्या रहेगा? सो इसका बेनिफिट रहेगा यूज ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी बेटर इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, एक बेटर टेक्निक है, मतलब वेस्ट को रीयूज करने के लिए इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है और कॉम्पैक्ट है, मतलब इसको ज़्यादा जगह वगैरह नहीं लगती। सब इसको छोटी सी जगह में भी हम इसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और नो ऑपरेटिंग प्रॉब्लम, इसका ऑपरेटिंग प्रॉब्लम भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो देर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स। ठीक है, सो बेसिकली आपको रिक्यूपरेटर, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर या फिर थर्मल व्हील के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है? तो
इंडस्ट्रियल सेक्टर में व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, अगर हम इसको इंस्टॉलेशन करते हैं हमारे इंडस्ट्री में, सो इससे हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। सो सबसे पहला इसका जो बेनिफिट्स रहेगा वो रहेगा वेस्ट हीट रिकवरी इंक्रीज टू द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है एक इंडस्ट्री की, वो इससे क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्ट हीट रिकवरी रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड सो डिक्रीज बोथ कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी कंजम्पशन। और सेकंड बेनिफिट ऐसा भी रहेगा कि अगर हम वेस्ट को अगर यूज़ कर रहे हैं तो जो इनिशियल जो हमें फ्यूल जो लग रहा है, तो अभी कैसा लगेगा, वो कम लगेगा, तो उससे डायरेक्टली जो इनपुट कॉस्ट है उसके ऊपर भी इसका फर्क हमें दिखाई देगा। उसके बाद वेस्ट हीट रिकवरी रिड्यूस हार्मफुल इमिशंस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और नाइट्रोजन। और जो वेस्ट जो गैसेस थी उसमें से जो हाईली टॉक्सिक गैसेज जो बाहर निकल रहे थे, वो भी उसका प्रमाण क्या हो जाएगा, उससे रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट हीट रिकवरी हेल्प्स टू रिड्यूस द इक्विपमेंट साइज, इससे क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट की साइज भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जैसे फ्यूल पंप हो गया, फिल्टर हो गया, फैन हो गया, ठीक है, तो उसको अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे क्या हो जाएगी, इसको जो साइज़ है इक्विपमेंट की वो कम हो जाएगी, और जो ओवरऑल जो हमारे प्लांट की जो कॉस्ट है वो भी कैसे हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स और एडवांटेज और यूजेस ऑफ वेस्ट हीट रिकवर, अब इसके बेनिफिट्स हमने पहले देख चुके थे। सो जैसे कि पहला बेनिफिट इसका डायरेक्ट बेनिफिट्स टू हीट द एयर विच इज यूज फॉर पर्पज ऑफ कंबशन, एयर को कैसा करेगा, गर्म करेगा, यानी कि जब वो कंबशन चेम्बर में जाएगी एयर, तो उसे बर्निंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद टू हीट द एयर विच इज यूज इन विंटर एयर कंडीशन, टू हीट द एयर विच इज यूज इन विंटर एयर कंडीशन, ठीक है। अभी जब विंटर में जब हमें एयर कंडीशन, जब हॉट एयर चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर कैसे चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए, तो उस एयर को इससे हम क्या कर सकते हैं, हीट अप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा गर्म करने की ज़रूरत नहीं, अगर हम इस वेस्ट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो एयर रहेगी उसको गर्म करके फिर एसी से हम भेज सकते हैं, ठीक है, यानी कि डक्ट सिस्टम से भी हम भेज सकते हैं विंटर सीजन में। उसके बाद इट केस ऑफ मेटल फर्नेस यूज फॉर मेल्टिंग स्टील स्क्रैप वेस्ट हीट कैन यूज फॉर हीटिंग द एयर अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। और जो मेटल इंडस्ट्री है उसमें भी हम इस एयर को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम यूज़ कर सकते हैं बायोफ्यूल्स में, या फिर ग्रीन हाउसेस में, एक और इंडस्ट्रियल पार्ट्स में, मतलब वेरियस जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप देख लेना एक बार। अब इसके एप्लीकेशंस, अभी एप्लीकेशंस क्या है इसके, सो क्रिएटिंग कंबशन एयर फॉर बॉयलर्स, ओवन्स एंड फर्नेसेस, क्रिएटिंग फ्रेश एयर यूज टू वेंटिलेट द बिल्डिंग, ठीक है। अभी बॉयलर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ओवन्स में भी यूज़ कर सकते हैं, फर्नेसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो बिल्डिंग्स की जो वेंटिलेशन सिस्टम रहते हैं, डक्ट सिस्टम वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका डाइंग प्रोसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे पेपर मिल हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें इसको सुखाने के लिए भी हम हॉट एयर का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ रहेगा। उसका स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ वेस्ट हीट आर एनिमल शेल्टर्स, यानी कि जो एनिमल्स, यानी कि जैसे कि रहते हैं ना, वो पोल्ट्री फार्म रहते हैं, या फिर एग्स की जो इंडस्ट्री रहती है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक्वाकल्चर यूजेस भी है इसके, ग्रीन हाउस में भी यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर यूजेस भी और प्रोसेस हीटिंग में, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमें हॉट एयर की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना है एयर का, तो वहाँ पे हम इस प्रोसेस को लगा के वेस्ट जो गैसेस रहेगी उसको हम फिर से यूज़ में ला के उससे हम क्या कर सकते हैं, एयर का टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे बेनिफिट्स रहेंगे वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम के, ठीक है। सो अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप एडवांटेजेस लिख सकते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसके बेनिफिट्स, ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसके एप्लीकेशंस, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 3 क्वेश्चंस आर ओवर हियर, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। और इसकी जो प्रोसेस रहेगी वो बेसिकली 3 टाइप की प्रोसेस रहती है। सबसे पहला रहता है रिकूपरेटर्स, ठीक है, सबसे पहले हम रिकूपरेटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर से, और उसके बाद है थर्मल विन, ठीक है, तो 3 टाइप से हम इसको प्रोसेस में ला सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक था अपना वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। उसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा इसमें क्या वो रहेगा एक को जनरेशन का, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाई जनरेशन, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो चैप्टर है अपना वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम चैप्टर बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक सबसे पहला रहेगा वेस्ट हीट रिकवरी, उसके बाद रहेगा को जनरेशन, और उसके बाद रहेगा टाई जनरेशन, ठीक है, जिसकी यहाँ पे उसने बताया है को जनरेशन के बारे में। सो को जनरेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ डाउट हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।